हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल भी। किवें हो सारे जने? हाँ जी, सो आप टाइम नहीं खराब करते, स्टार्ट करते हैं सैशन नू। सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। ਆਪਾਂ कल IP4 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, IPV4 ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ फटाफट ਆਪਾਂ IPV6 ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ ਲੈਣੇ ਆ जल्दी जी। हाँ जी, IPV6 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। कुछ भी ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, क्योंकि जिन्ना भी कुछ आप पढ़िया सीगा IPV4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰਾ कुछ IPV6 ਦੇ ਵਿੱਚ है। बस सिर्फ एक ही कंडीशन है कि IPV4 ਦੇ किन्ने पार्ट सीगे 4 है ना। IPV4 ਦੇ किन्ने पार्ट सीगे 4 न्यूमेरिकल पार्ट सीगे ते ਇਹਦੇ किन्ने पार्ट हो अपने हो जाएंगे 8 पार्ट हो जाएंगे। इस करके पहली गल याद रखियो कि IPV6 ਦੇ टोटल किन्ने पार्ट ने जी 8 पार्ट ने। किन्ने पार्ट ने 8 पार्ट ने। किन्ने पार्ट ने 8 पार्ट। उस तो बाद विच सैकेंड नंबर की गल करते हैं आपां। सैकेंड नंबर दे विच जे आपां गल करिए भी IPV जिहड़ा 6 होंदा है अपना IPV6 है ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾर्ट ਨੂੰ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ IPV4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਵੇਂ ਡੋਟ ਡੋਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ उस डोट की थां ते की लग जाएगा, कोलम लग जाएगा। एक गल ध्यान रखियो सारे जने, ठीक है जी। नैक्सट वन इज आप गल कर दी है तीजे नंबर ते कि IPV जिहड़ा 6 होंदा है उहदे प्रत्येक पार्ट दे विच 0 तो लेके 9 तक, 0 तो लेके किन्ने तक 9 तक, अते A तो लेके ध्यान रखियो A तो लेके F अल्फाबेट तक, F अल्फाबेट तक ਇਹਦਾ यूज आप कर सकते हैं। ये भी गल ध्यान रखियो IPV6 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 तो लेके 9 तक ਦੇ डिजिट आ सकते हैं तो A तो लेके F तक अल्फाबेट भी आ सकते हैं। फटाफट दसो इन्नी चीज़ समझ आ गई ना सारिਆਂ ਨੂੰ। IPV4 ਤੇ IPV4 ਤੇ IPV6 ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक ही फर्क है कि IPV4 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 पार्ट सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 पार्ट ने, ठीक है जी। IPV6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कोलन लग जाएगा, डॉट नहीं लगेगा, और 0 तो लेके 9 और A तो लेके F तक टोटल अल्फाबेट्स अपने आउणगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। फिर चौथे नंबर की गल करते हैं ਆਪਾਂ। चौथे नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ गल करिए IPV6 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜਾ IPV6 ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, बहुत इंपोर्टेंट गल दस रहा। IPV6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ प्रत्येक पार्ट ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट ਸੀਗਾ, ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 8 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IPV6 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 16 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 8 ਬਿਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ 16 ਬਿਟ है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਬਾਈਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਬਾਈਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। और दूजी गल आप IPV4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ कि IPV ਜਿਹੜਾ 4 है वो टोटल 32 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ IPV6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IPV ਜਿਹੜਾ 6 ਹੁੰਦਾ है, IPV ਜਿਹੜਾ 6 ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट ਹੁੰਦਾ है वो 128 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। किन्ने विच हुंदा है 128 बिट, या फिर आप कह सकते हैं किन्ने 16 बाइट, ठीक है जी।
16 ਬਾਈਟ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? IPv4 ਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ IPv6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਰਜ਼ਨ 6 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਤੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। IPv6 16 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੇਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ 16 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 16 ਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਬਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ IPv6 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ 128 ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 16 ਬਾਈਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IPv ਜਿਹੜਾ 4 ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਕਟੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕਟੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਓਕਟਲ, ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਰਡ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ, ਓਕਟਲ, ਡੈਸੀਮਲ, ਬਾਈਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 8 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਅੱਖਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 16। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਓਕਟੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, IPv4 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, IPv4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕਟੈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ, 8 ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 'ਚ 8 ਬਿਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 8 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 16 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਓਕਟੈਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, IPv6 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਕਸਾ ਡੈਸੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਆਪਸ਼ਨਸ IP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ IPv6 ਦੇ 8 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। IPv6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। IPv6 16 ਬਿਟ ਜਾਂ 2 ਬਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IPv6 128 ਬਿਟ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 16 ਬਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ IPv6 ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੀਪ ਗਗਨ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ IPv6 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। IP ਐਡਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ? ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ IP ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ। ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, मैक एड्रेस ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो किसी भी, ध्यान रखियो, किसी भी डिवाइस का, किसी भी डिवाइस का, ठीक है जी, किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस, किसी भी डिवाइस का फिजिकल ਜਿਹੜਾ एड्रेस ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ, मैक एड्रेस कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, मैक एड्रेस। यानी किसी भी डिवाइस का अगर सानू फिजिकल एड्रेस लेना है तो वह हमेशा की कहलाएगा, मैक एड्रेस कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जे गल की जाए भी आ जिहड़ा मैक एड्रेस हुंदा है, ये जिहड़ा मैक एड्रेस हुंदा है, ये किहदे द्वारा मतलब मैनेज किया जाता है मैक एड्रेस? ध्यान रखो, जिथे एड्रेस का मतलब हो गया उत्थे इहो जिहे वर्ड ही होणगे, 234 335 एवें करके। ठीक है ना। हुण जे आपां गल करिए कि मैक एड्रेस जिहड़ा हुंदा है वो किहदे द्वारा हुंदा है, ध्यान रखियो, IEEE एक इंस्टीट्यूट है, उहदे द्वारा इनू मैनेज किया जाता है।
ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, एक गल ध्यान रखियो कि मैक जिहड़ा एड्रेस है वो किहदे द्वारा कीता जाता है, मैनेज इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अच्छा हुण आपां गल करते हैं भी आ मैक एड्रेस दिता कदों जाता है अपने कंप्यूटर नूं, तो आपां ध्यान रखना है कि जिहड़ा मैक एड्रेस है वो किसी भी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के समय ही दिता जाता है। ध्यान रखियो, यानी आपां कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर दिया जाता है। हुण ध्यान रखियो जदों इहदी कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग मेरा लैपटॉप है सोनी का, मान लो इनू जो मैन्युफैक्चरिंग की गई उदों इहदा मैक एड्रेस देता, हुण भी वही है, इस करके सानू पता लग रहा है भी हाँ ये सोनी का लैपटॉप है तो इस बंदे का है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक एड्रेस ऑटोमैटिकली पिया होया और दस रहा है कि सोनी का। जिवें आपां कारां ਦੀ ਗੱਲ कर ਲੈਂਦੇ आ, कारां ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ की ਹੁੰਦੀ है ना, कारां ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ अजकल ਜਿਹੜੇ आ रहे ने उन्हां ਵਿੱਚ भी एड्रेस ਹੁੰਦੇ ਆ। ध्यान रखियो अजकल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एड्रेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, हर एक चीज़ ਦਾ एड्रेस ਹੁੰਦਾ है। एक एड्रेस खराब हो गया तो गड्डी स्टार्ट ही नहीं होती, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। इस करके ध्यान रखियो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जी चीज़ एड्रेस पाई जाती है उन्होंने मैक एड्रेस किया जाता है। वॉइस डबल आ रही है, नहीं आ रही भी, बिल्कुल सही चल रही है। तुम इधर ही ध्यान क्यों देने होने हो? अगे चलो, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जी भी चीज़ एड्रेस पाया जाता है उन्होंने की कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। हुण आपां गल करते हैं जी सर जी इहदा फॉर्मेट की हुंदा है मैक एड्रेस का, जी पेपर वाला पूछ ही लवे भी फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस, फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस की इहदा एड्रेस की होएगा सर जी। तो ध्यान रखियो इहदे विच, ध्यान रखियो मैक एड्रेस पता किहो जिहा हुंदा है, देखो ध्यान नाल देखियो एवें दा हुंदा, देखो MM फिर MM फिर MM फिर SS फिर SS फिर SS। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब ये है कि एक ਜਿਹੜਾ मैक एड्रेस है वो दो करैक्टर ਦੇ ਨਾਲ मिल के ਬਣਿਆ है। किन्ने किन्ने करैक्टर ਦੇ ਨਾਲ मिल के ਬਣਿਆ है? दो अक्षर ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, एक गल तो ध्यान रखनी आ वाली कि ਜਿਹੜਾ मैक एड्रेस है वो दो अक्षरों के नाल ਬਣਿਆ है तो किन्ने सैटां ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 सैट, यानी आप कह सकते हैं 2 अक्षर के 6 सेट में। डिवाइड किया गया है, एक तो आ तुहानूं याद रखना है। ठीक है जी, मैक एड्रेस जिहड़ा हुंदा है, जिहड़ा मैक एड्रेस हुंदा है वो टोटल 48 बिट का हुंदा है। जिहड़ा मैक एड्रेस हुंदा है टोटल 48 बिट का हुंदा है। ठीक है जी, ये 6 पार्ट होंदे ने। किन्ने पार्ट होंदे ने? 6। जे आपां इहदे विच 6 का भाग ला दईए तो कितना आ गया? 6 का भाग ला दईए तो कितना आ गया? 8 आ गया ना, 8 6 48। ਇਹਦਾ मतलब है आ जिहड़ा प्रत्येक पार्ट है, आ जिहड़ा प्रत्येक पार्ट है, चल जा, हाँ जी, आ जिहड़ा प्रत्येक पार्ट है, ये जिहड़ा प्रत्येक पार्ट है ये किन्ने बिट का होया? 8 बिट का होया। ठीक है जी, 8 बिट का होया और टोटल 48 बिट दे विच की हो गया है? डिवाइड हो गया। इन्नी गल समझ नूं सारिआं नूं आ गई? अच्छा हुण आपां कहने सर जी आ जिहड़ा तुसीं MM लिखिआ इहदा मतलब की है? इहदे जिहड़े फस्ट 3 पार्ट हुंदे ने, जिहड़े फस्ट 3 पार्ट हुंदे ने उन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे हुंदे ने। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे हुंदे ने, ये गल ध्यान रखियो। ठीक है जी, अगे चलते हैं आपां भी जिहड़ा आपां कह सकते हैं भी मैक एड्रेस के जिहड़े पहले 3 पार्ट होंदे ने वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे हुंदे ने। ठीक है जी, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ID हुंदी है। तो जिहड़े लास्ट पार्ट होंदे ने, लास्ट 3 पार्ट, तो जिहड़े लास्ट 3 पार्ट होंदे ने
ਉਹ ਡਿਵਾइस ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डिवाइस का की हुंदा है? सीरियल नंबर हुंदा है। दसो बई चीज़ां समझ आ गई मैक एड्रैस के बारे? फटाफट दसो। दसो भी इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? अच्छा हुण की हुंदा है, जिहड़े अजकल दे जिहड़े कंप्यूटर बन रहे हैं ना, जिहड़े वड्डे वड्डे आईफोन दे हो गए, एप्पल दे हो गए ना, जिहड़े वड्डे वड्डे कंप्यूटर बनते हैं उन्हां विच जिहड़ा मैक एड्रैस है वो अज के टाइम 'च होर चेंज करता। होर चेंज की कीता है? ध्यान रखियो, अजकल वर्तमान दे विच 64 बिट वाला आ गया। किन्ने बिट वाला आ गया? 64 बिट वाला आ गया। ध्यान रखियो, ठीक है जी। और ये टोटल किन्ने पार्ट हो गए फिर दसो? ये पार्ट भी उन्होंने किन्ने करते? 8 करते। जिथे 6 पार्ट सी उत्थे 8 पार्ट करते। ध्यान रखियो। और वो जिहड़े पार्ट ने वो किवें होंदे ने पेपर दे विच? एम 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 एम। ये तो श्योर है भी 3 जिहड़े होणगे किहड़े होणगे? ये 3 जिहड़े होणगे ये होणगे अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे। तो जिहड़े आखिरी लास्ट होंदे ने वो किहड़े होंदे ने? सीरीयल नंबर। आ लो जी, एस 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 एस। हुण कवांगे सर जी ये जिहड़े 2 पार्ट जोड़े होणगे वो नवें किहड़े जोड़े है? वो जोड़े है जी एफ ई ते एफ ई। की पता जी? एफ ई एफ ई। हुण तुसीं कहोगे सर जी आ एफ ई का मतलब की हो गया? एफ ई का मतलब की हो गया? दस सकता है कोई? फटाफट दसो भी एफ ई का मतलब की हो गया? सॉरी, एफ एफ और एफ ई थोड़ा चेंज हो गया। एफ एफ और एफ ई दस सकता है कोई? फटाफट दसो भाई। फटाफट। सिर्फ एक बच्चे ने क्या नहीं पता? बाकी दसो। नहीं पता? ध्यान रखियो भी ये जिहड़ा एफ एफ है और एफ ई है ये दसेगा साडे नोट्स दे बारे, साडियां तारां दे बारे दसेगा। ठीक है जी, साडियां तारां दे बारे दसेगा। यानी इहनूं आपां कह सकते हैं फ्रेम। जिहड़ी तारां दा फ्रेम बनाया है उन्हां फ्रेम दे बारे दसेगा। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखो। दोनों चीज़ां एफ एफ ते एफ ई, ये गल ध्यान रखो सारे जने। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? ये गल ध्यान रखियो। फ्रेम नोट्स यानी तारां दे जिहड़े फ्रेम बने होंदे उन्हां बारे दसदा है उहदे अंदर। सो इस करके ध्यान रखना है जिहड़े अजकल दे प्रेजेंट टाइम दे जिहड़े मैक एड्रैस बन रहे ने वो किन्ने डिजिट दे बन रहे ने? 8 डिजिट दे बन रहे हैं। ठीक है जी, 8 पार्ट दे विच, 8 पार्ट दे विच बन रहे हैं। ये गल ध्यान रखियो सारे जने। चलो जी, मैक एड्रैस हो गया। हुण आपां चल दिंदे आ इहदे विच ही IP एड्रैस तो बाद आपां गल करदे सीगे मैक एड्रैस। मैक एड्रैस तो बाद गल करदे आ नैटवर्क सिक्योरिटी दी। सब तो इंपोर्टेंट है भी इहदे विचों एक प्रश्न पक्का बनदा हुंदा है, नैटवर्क सिक्योरिटी। नैटवर्क सिक्योरिटी नहीं, सॉरी भाई, नैटवर्क टोपोलॉजी। सिक्योरिटी बाद पढ़ांगे। नैटवर्क टोपोलॉजी। जे आप गल करिए नैटवर्क टोपोलॉजी की, ये टोपोलॉजी की होंगी है ना? सब तो मेन चीज़ तो यही है, पेपर के सब तो ज़्यादा क्वेश्चन ही ये बनते हैं। ध्यान रखियो भाई, ध्यान नाल सीख लो। नैटवर्क टोपोलॉजी की होंगी है, सुनियो ध्यान नाल।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? नेटवर्क टोपोलॉजी कह देने। की कह देने? नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी आप सिंपल सा लॉजिक याद कर सकते हैं, एक नेटवर्क को तारों के जाल के साथ जब कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है तो वह नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। सब तो पहले नंबर ते आउंदी है जी बस टोपोलॉजी। किहड़ी आउंदी है? बस टोपोलॉजी। सब तो इंपोर्टेंट दस रहा वां, रट लियो। पेपर दे विच एक क्वेश्चन तुहानूं इहदे विचों पक्का मिलेगा। दूजे नंबर ते पढ़दे हां जी रिंग टोपोलॉजी। किहड़ी टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी। तीजे नंबर ते आपां पढ़ांगे इहदे विच ही स्टार टोपोलॉजी। चौथे नंबर ते आपां पढ़ांगे ट्री, या आप कह सकते हैं ट्री कह लो, चलो, या इनू नाम एक होर है, थोड़ा अजीब जा नाम है वैसे, हायर हायर आर्चिकल, हायर आर्चिकल टोपोलॉजी। ठीक है जी। और फिर आप पंजवें नंबर ते जिहड़ी पढ़ांगे वो पढ़ांगे जी हाइब्रिड टोपोलॉजी। और फिर पढ़ांगे सिक्स्थ नंबर ते मैश टोपोलॉजी। फिर की पढ़ांगे? मैश टोपोलॉजी। यानी कहने का मतलब ये हो गया टोटल साडे कोले किन्ने तरह दियां हो गईयां? 6 तरह दियां टोपोलॉजियां हो गईयां जिहड़ियां पेपर दे विच पुछेगा ही पुछेगा। 101%। अज लिख लो मेरी गल नूं। हाँ जी, बस टोपोलॉजी की हुंदी है? सब तो पहली चीज देखो, मैं एक डायग्राम जब बनाऊंगा उस डायग्राम में तुहानूं कन्वर्ट समझ आएगा। ध्यान नाल देखियो। इनू क्या जाता है जी? बस टोपोलॉजी। की क्या जाता है इनू? बस टोपोलॉजी। ध्यान रखियो, एक मेन केबल, आ देखो आ मेन केबल है ना, एक मेन केबल जिन्हों आप कह दिने आ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ठीक है जी, बैकबोन। एक मेन केबल से ही सारी जड़ियां तारां वां, सारे जड़े नोड्स ने वो जोड़े जाते हैं। ठीक है जी, एक मेन केबल से सारे नोड्स जो जुड़ियां रहिंदियां वां तथा इहदे विच खराबी आउण ते, खराबी आउण तो जो नोड्स का ट्रांसमिशन होंदा है वो संभव नहीं होंदा। मतलब जे मैं इधरों धारा प्रवाहित की, मान लो इस तार दे विच इत्थे प्रॉब्लम आ गई, ਇਹਦਾ मतलब है ये सारा कुछ ही बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये गल ध्यान रखियो। जिवें बस का टायर पैंचर हो जाता है तो बस अगे चल नहीं सकती, तो सारिया सवारियां की हो जांदियां? खराब हो जांदियां, है ना। सारिया सवारियां नूं नवीं बस लभनी पैंदी है। उही चीज़ है भी आ सारिया सवारियां ने इस तार दियां, जो एक तार की आ चीज़ खराब होगी तो सारिया सवारियां की हो जाएगियां? खराब हो जाएगियां। दसो समझ आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखियो, एक मेन केबल दे नाल सारिया तारां जो जोड़िया जांदियां ने उन्हां नूं की किया जाता है? बस टोपोलॉजी किया जाता है। समझ आया कि नहीं आया? फटाफट दसो, फटाफट दसो भी चीज समझ आई कि नहीं आई? दसो भाई। चलो जी, समझ आ गई। चलो आगे रिंग टोपोलॉजी की गल करते हैं आप। रिंग टोपोलॉजी की होंदी है? ध्यान नाल देखना सारे जाए। रिंग टोपोलॉजी की होएगी? ध्यान नाल, आ मैं एक रिंग बनाई, बनाती, इस रिंग दे नाल इधरों एक जोड़ता,
कंप्यूटर, इधरों बी कंप्यूटर जोड़ता, इधरों सी कंप्यूटर जोड़ता, इधरों डी कंप्यूटर जोड़ता, इधरों ई कंप्यूटर जोड़ दिता और इधरों जिहड़ा मेन जिन्हों आप कह दें मोनीटर की करता जी आप मेन मोनीटर ध्यान रखियो। ठीक है जी, मेन मोनीटर ध्यान रखियो। यानी आप कह सकते हैं कि ये प्रत्येक जड़ियाँ नोड्स होंदियां वा अन्य दो नोड्स से जुड़ी रहती है। यानी जे आप गल करिए आ जड़ा ई है इनू आप कह सकते हैं रिपीटर। क्यों? क्योंकि देखो ये इधरों भी जुड़ी हुई है, ये इधरों भी जुड़ी हुई है। यस या नो? यानी इस ई नू जे कहिए तो इधरों भी जुड़ी हुई है तार, इधरों भी तार जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये हो गया। रिंग टोपोलॉजी का मतलब की होएगा, ध्यान नाल सुन लियो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ अन्य दो नोड्स ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ। ਕਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ है जी, रिंग टोपोलॉजी होगी, रिंग टोपोलॉजी होगी। नेक्स्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੱਬ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ठीक है जी, ये साडा हो गया हब। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ जोड़ता कंप्यूटर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ कंप्यूटर जोड़ता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ वाला कंप्यूटर जोड़ता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ वाला भी जोड़ता, आ वाला कंप्यूटर भी जोड़ता, आ भी कंप्यूटर जोड़ता ते आ भी जोड़ता। ये साडा ए कंप्यूटर मान लो, ए बी मान लो, ए सी मान लो, ए डी ई एफ जी। हुण ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ਇਹਨੂੰ स्टार टोपोलॉजी कहता। बस सिर्फ दो तीन चीज़ों की फर्क है। बस ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਥ ਹੋ ਗਏ? ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋ ਪਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अन्य ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, जे तो इस हब दे विच प्रॉब्लम होगी फिर तो सारा नैटवर्क गया, फिर तो चलूगा ही नहीं। और कदी कदी हब नहीं खराब होंदा, आ वायर खराब हो जाती है नोड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ वाला कंप्यूटर नहीं चलेगा, बाकी सारे कंप्यूटर चल जाएंगे। जिवें आपां गल करिए वाईफाई की, सिंपल सा लॉजिक लेके चलते हैं वाईफाई का। तुहाडे घरे वाईफाई लग्या होया है? लग्या होया कि नहीं लग्या होया? दसो मैनू, लग्या होया कि नहीं लग्या होया? चलो नहीं भी लग्या होया तां भी चलो छड्डो, मान लेने लग्या होया है। जो वाईफाई अपने घरे नहीं चलता, आपां दो तीन जणिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਡਿਸਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਹੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਸਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਸਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡਿਸਕ? ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਇਹ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਜੋੜਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਜੋੜਤੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜਤਾ, और उस कंप्यूटर के नाल मैं दो तीन कंप्यूटर होर जोड़ते।
ठीक है जी। समझ आ गई गल। इनू किया जाता है ट्री, यानी एक ही तार दे नाल जोड़िया जाए दो कंप्यूटरां नूं और उहदे बाद दो कंप्यूटरां तो बाद सारे कंप्यूटर जोड़ दिते जान, उन्हां नूं आपां कहते हैं ट्री। यानी जे आपां गल करिए इहदी जिहड़ी एक रिलेशन है, एक व्यवस्था है, वो एक पेड़ की तरह होंदी है, एक ट्री की तरह होंदी है। ठीक है जी। जिहदे विच पेरेंट नोड होती है। पेरेंट नोड का मतलब ये हो गया भी एक पेरेंट, पेरेंट का मतलब क्या होता है, माता पिता। पेरेंट का मतलब माता पिता होंदे ने ना, तो एक ही तार दे विचों आ दो बच्चे, एक ही तार दे विचों दो बच्चे कढ़ते इन्होंने, इस करके इनू कहा जाता है पेरेंट नोड कहते हैं। और इन्हां नू की कहा जाता है, चाइल्ड नोड। की कहा जाता है, चाइल्ड नोड। बहुत इंपोर्टेंट गल दस रहा वा, कोई भी नहीं दसेगा यूट्यूब के इतिहास दे विच जिहड़ियां चीज़ां दस रहा मैं तुहानूं। चाइल्ड नोट और इनू कह देंगे आ पेरेंट नोट, क्योंकि सारे जने यही सोचते हैं साडे कोल जवाक चल के आवे असीं फिर दसांगे सारी चीज़ां। पेरेंट नोट इनू किया गया और आ सारियां की हो गई, चाइल्ड नोट हो गई। ठीक है जी, चाइल्ड नोट। अच्छा, पेरेंट नोट नू एक नाम होर भी दे सकते हैं आपां, रूट नोड। की कह सकते हैं, रूट नोड कह सकते हैं। ठीक है जी। और जे आपां गल करिए चाइल्ड नोड नू होर की नाम दे सकते हैं, तो लीफ, पत्तियां, लीफ नोड भी दे सकते हैं। ठीक है जी। की कह सकते हैं, लीफ नोड भी कह सकते हैं। सो तुहानूं पता लग गया होएगा ट्री दे विच की हुंदा है, एक पेरेंट नोड होंदी है, उहदे बाद उहदियां चाइल्ड नोड होंदियां वा, उन्हां दे नाल उहनूं जोड़िया जांदा है। स्टार टोपोलॉजी दे विच एक हब हुंदा है, उहदे नाल सारियां नूं जोड़िया जांदा है। ठीक है जी। अगे हुण आउंदा है जी साडा हाईब्रिड टोपोलॉजी किहड़ी हुंदी है। हाईब्रिड, हाईब्रिड का नाम ही पता लग गया होएगा, बहुत ही ज़्यादा खराब, बहुत ही ज़्यादा बेकार, है ना। तो सुनियो, आ एक तार बनाती मैं, बनाती, ਇਹਦੇ ਤੇ एक कंप्यूटर इत्थे लाता मैं, एक कंप्यूटर इत्थे लाता मैं, एक कंप्यूटर इत्थे लाता मैं। ठीक है जी। उस तो बाद एक कंप्यूटर मैं ये होर लाता। जे आपां इन्नी जी गल नूं कहीए तो आपां कहांगे सर जी ये तो बस टोपोलॉजी बन गई, ये तो की बन गई, बस टोपोलॉजी। हुण देखो ये नाल एक हब लाता इसी तार दे नाल, और उस हब दे नाल की करता, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, इनू आपां कह दिंदे आ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है जी। फिर उस तो बाद ये नाल की कीता इन्हां ने, एक होर कंप्यूटर लाया, उस कंप्यूटर नूं एवें जोड़ता, इनू एवें जोड़ता और इनू एवें जोड़ता, इनू कह दिता रिंग टोपोलॉजी। कुछ समझ आया। यानी हाईब्रिड का मतलब ये हो गया भी ये बस भी आ गई, ये स्टार भी आ गई, रिंग लाइट भी आ गई, तो ट्री तो बन ही रहे हैं, तो ट्री टोपोलॉजी भी आ गई। यानी हाईब्रिड का मतलब है कि ये सारा कुछ ही आ जाएगा, या दो से अधिक टोपोलॉजी का क्या मिश्रण, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण। ठीक है जी। दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का जिहड़ा मिश्रण होंदा है उन्होंने की कहा जाता है, हाईब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। की कहा जाता है, हाईब्रिड टोपोलॉजी। हुण तुसीं कहोगे सर जी मैश, अच्छा मैश की हुंदा है, तुसीं नैश सुनिया होगा, नैश, नैश तो होंदा है बहुत तकड़ा, बहुत वधिया, है ना। बट आप गल कर रहे हैं मैश, ये मैश की होंदी है। आपां जूस बनाने अंब का, पूरा मैश नहीं करते। आपां जो मटर पनीर बनाने उदों आपां प्याज़ां नूं, टमाटरां नूं, है ना, सारियां नूं की कर दिंदे, लसन नूं, अदरक नूं मिक्स कर दिंदे, उहनूं की कहा जाता है, मैश कहा जाता है ना, मैश। तो बस उही चीज़ है। ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई टोपोलॉजी नहीं होंदी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी की नहीं होंदी, टोपोलॉजी नहीं होंदी, ਉਹਨੂੰ ही ਆਪਾਂ मैश टोपोलॉजी कह दिंदे आ। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान नाल, आ मैं एक बनाया, ठीक है, ਇਹਦੇ नाल मैं एक होर बना दिता,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 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 ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਸ਼। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਗਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। फटाफट दसो भी समझ आ गई कि नहीं आई? क्लीयर? तो ये सी जी साडा टोपोलॉजी का पार्ट। पेपर दे विच टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत आउणगे, भी ध्यान रखियो। ये गल सारिਆਂ ने ध्यान रखनी, टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत बार पेपर दे विच पूछ लैंदा है। ठीक है ना? चलो जी, हुण आपां अज करदे हां, इन्ना ही करांगे आपां एक बार अज तां। हुण मैं टोपोलॉजी छड्डती, टोपोलॉजी तो बस अपने मान लो नैटवर्क का जिहड़ा पार्ट है वो ट्यूसडे नूं मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है ना? नैटवर्क का जिहड़ा पार्ट है, आई होप सो। हुण मैं तुहाडे वास्ते कुछ क्वेश्चन लेके आया वां, उस क्वेश्चनां दे जवाब तुसीं देने ने। ठीक है ना? क्योंकि नाल नाल आपां वो क्वेश्चन करांगे, तुहाडा भी लैवल क्लीयर हो जाएगा। ठीक है जी? हाँ, क्वेश्चन किवें दस देना। हाँ, क्वेश्चन तुहानूं दस दिंदा भी मैं इहदे विच किहो जिहा बनेगा। चलो तुहानूं दस दिंदे हां। सन्नी जी ने क्वेश्चन पूछा है, देखो भाई क्वेश्चन किवें बनता है। देखो इहदा हाईब्रिड वाले का जिवें मर्जी है, क्वेश्चन किस तरीके नाल बन सकते हैं। देखो आपां नूं उहने क्वेश्चन पूछया, पहला क्वेश्चन, बस टोपोलॉजी का यूज अधिकतर कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? बस टोपोलॉजी का यूज अधिकतर कहाँ किया जाता है? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखियो, आप कह सकते हैं ऑफिस, ਜਿਹੜੇ ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ है जी? दूसरा क्वेश्चन संदीप सिंह ने जिवें आप पूछा कि सबसे ज्यादा कौन से टोपोलॉजी यूज होती है ना, इन्होंने आप पूछा। तो जे आप गल करिए भी सब तो ज्यादा जिहड़ा डेटा ट्रांसमिशन होता है वो मैश टोपोलॉजी च होता है। इस करके आप कह सकते हैं भी सब तो ज्यादा जिहड़ी यूज होती है वो किहड़ी होती है? मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है संदीप सिंह जी? आलो जी, संदीप सिंह का भी क्वेश्चन लिखने हैं आप। सबसे ज्यादा कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है? तो याद रखियो, सब तो ज्यादा जो टोपोलॉजी है केड़ा यूज होता है? मैश टोपोलॉजी। ठीक है भी संदीप सिंह? अगे जी, अच्छा
ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है, ऐसा कौन सी टोपोलॉजी है, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन का एक मार्ग बंद हो जाए, एक मार्ग बंद हो जाए तो वह अपने आप ही दूसरे मार्ग में से, दूसरी सड़क में से डाटा का ट्रांसमिशन कर देती है। दस्यो भाई, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें डाटा ट्रांसमिशन का एक मार्ग बंद हो जाए और वह अपने आप ही दूसरे मार्ग में डाटा ट्रांसमिशन कर देती है? नहीं भाई, रिंग नहीं होएगी भाई, रिंग नहीं होएगी। हुणे दस के गया, सब तो मेन की है मैश टोपोलॉजी, रिंग नहीं। रिंग वाली जे आपां गल करिए तां रिंग दे विच तां आपां नूं पता है, रिंग दे विच तां आपां नूं पता है एक थां तो खत्म होगी दूजे थां वाली चले जाएगी। मैं गल सही कही है तुहानूं, बिल्कुल सही गल है। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो पाथ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ कर रहे हैं? ट्रांसमिशन दी। ऐसा कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन का एक मार्ग बंद हो जाए तो वह अपने आप ही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ करना पएगा, रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ करनी पएगी सैट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ऑटोमेटिक ही चली जाएगी डाटा ट्रांसमिशन। याद रखियो मैश हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा आ दस्यो, पहले से स्थित नोड डिलीट करना, पहले से स्थित नोड डिलीट करना या नई नोड जोड़ना, किस टोपोलॉजी में आसान होता है? दसो भाई, किस में आसान होता है? पहले से स्थित नोड को डिलीट करना या नई नोड को जोड़ना, किस टोपोलॉजी में आसान होता है? दस्यो भाई। हुण तुहानूं पता है मैश दे विच तां नहीं होण रहा, मैश तां बहुत वड्डी हो गई है ना। हाईब्रिड तां भुल ही जाओ, ट्री भी भुल जाओ, ट्री दे विच भी बहुत सारे हो जाते हैं। उत्तर तां बस भी भुल जाओ, उत्तर तां रिंग ते स्टार दे विचों कोई एक है। तो ध्यान रखियो, इहदा जिहड़ा उत्तर आ जाएगा वो किहड़ा आ जाएगा? स्टार टोपोलॉजी आ जाएगा। किहड़ा आ जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। की आ जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। ध्यान रखियो, पहले तो ज़्यादा जो नोड उन्होंने डिलीट करना तो नवी नोड जोड़ना। एक गल दस भी, जिन्हें बस दसिया थोड़ा जिहा दिमाग लाओ, जिन्हें बस दसिया थोड़ा जिहा दिमाग लाओ। आ रही बस, मैं मान लो मैनू आ वाली तार कढ़नी है इत्थों लेके इन्नी, कि मेरे वास्ते आसान है? मेरे वास्तों आ वाला कंप्यूटर कढ़ना है, मेरे वास्ते आसान है भी आ मैं पूरी तार नूं दोबारा फिर जोड़ूंगा? थोड़ा जिहा दिमाग तो लाओ यार। रिंग की गल करिए, जे मैं मान लो इनू डिलीट करनी है, हुण इनू डिलीट करता है मतलब है मैनू दोबारा फिर इनू जोड़ना पएगा इस तार नूं। थोड़ा जिहा दिमाग लाओ। स्टार दे विच तां एक हब है, मैनू आ वाली तार डिलीट करनी है, आ लो कढ़ती बाहर। की मेरे कोई दिक्कत हुई? मेरे कोई दिक्कत हुई? मैनू आ वाली तार कढ़नी है, आ लो कढ़ती। मैनू आ वाली तार कढ़नी है, कढ़ती। मैनू आ वाली दोबारा फिर तार पाउणी है, पाती। आसान है या नहीं है? क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा समझो। डायग्राम बनाने के पिछे रीजन ही यही सीगा तुहानूं
आ गई समझ में सारिਆਂ ਦੀ गल? मैं की क्या, पहले से स्थित नोड डिलीट करना या नई नोड जोड़ना किस टोपोलॉजी में आसान होता है? हुंदा तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही है। चलो जी, इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? अगे चलते हैं जी अगली क्वेश्चन पे। अच्छा, नैटवर्क की स्ट्रैटेजी की है वो भी देख लो। नैटवर्क की स्ट्रैटेजी की है? नैटवर्क की स्ट्रैटेजी सुनो ध्यान नाल। नैटवर्क की करता है, जे आप पूछे तुहानू नैटवर्क की करता है? नैटवर्क सर जी सूचना का आदान प्रदान करता है। सूचना का आदान प्रदान यही करता है ना, यानी सूचना ले ली तो भेजती, सूचना ले ली तो भेजती। ये सब तो पहली चीज़ जे स्ट्रैटेजी की गल करिए भी यदी स्ट्रैथ की है, यदी सब तो पहले नंबर पर आती है टर्मीनल, टर्मीनल सर्वर नैटवर्क। दूजे नंबर पर आता है जी साडा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर तीजे नंबर पे इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज पीयर टू पीयर? व्हाट इज पीयर टू पीयर? साडे राजस्थान च की होंदा है, जदों कुड़ी दा जिहड़ा ससुराल पक्ष शायद होंदा है, मैनूं लगदा है उहनूं कहा जाता है पीयर के माइक, एक होंदा है माइक, एक होंदा है पीयर, है ना, कि पीयर गईड़ी है होंदा है ना। आपां जे कहीए राजस्थान राजस्थानी भाषा दे विच कहीए तां की होया, मैं जदों आ क्वेश्चन करवाउण लग्या इत्थे बच्चों नूं, मैं कहा भी पीयर टू पीयर का मतलब की होंदा है, तो वो पता जवाब की कहंदे कि एक जिहड़ी एक कुड़ी है या मान लो एक जो भी है लुगाई, कि सर बिंगे अगर दो शादियां होवे और दोनों शादियां होने खातर क्या है कि जी वो पीयर टू पीयर, मतलब एक पीयर तो दूजे पीयर ते जारी है जी, उन्होंने पीयर टू पीयर कहते हैं। सो पीयर टू पीयर का मतलब वही है, लेकिन इत्थे कंडीशन अड्ड है क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान देखियो हुण, टर्मीनल सर्वर नैटवर्क की होंदा है? टर्मीनल का मतलब ही होंदा है एक सेंट्रलाइज्ड बस ਇਹਦਾ मतलब टर्मिनल का मतलब ही की हो गया सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर बना दिता जाएगा, पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर बना दिता जाएगा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारिया इन्फॉर्मेशन पा दी जाएगियां और ਉੱਥੋਂ ही डाटा की होंदा रहेगा, ट्रांसफर होंदा रहेगा, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ टर्मिनल सर्वर नैटवर्क। पहला तो आप टर्मिनल की गल लेके चलते हैं एयरपोर्ट से। देखो एयरपोर्ट से की होंदा है, आ सारे का सारा एयरपोर्ट है, आ सारे का सारा एयरपोर्ट है, लेकिन फिर भी इस एयरपोर्ट का एक गेट आ रहा, इस एयरपोर्ट का एक गेट आ रहा और इस ही एयरपोर्ट का एक गेट आ रहा, और उन्होंने इस थां नूं वंड दिता, इस थां नूं वंडता कि जेड़े इस गेट थानी आउणगे वो तां जाणगे जी किहड़े थां, वो तां जाणगे डोमैसटिक फ्लाइटां दे विच जाणगे। डोमैसटिक फ्लाइटां मतलब इंडिया दे विच जाणगे। जेड़े टर्मिनल सैकेंड दे विच जाणगे वो इंडिया तो लेके इंडिया के नाल नाल वाले जिन्ने भी कंट्रीज़ ने उन्हां दे नाल नाल जाणगे, वो टर्मिनल सैकेंड च आ गए। टर्मिनल थर्ड हो गए जेड़े बहुत दूर दूर ने, जिवें आस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जर्मन, फ्रांस, ये टर्मिनल 3 बनाता। हुण देखो है तो सेंट्रलाइज सर्वर एक ही, जाना तो इत्थों दी पेगा अंदर दी, लेकिन इन्हां दे टर्मिनल किन्ने बनाते? 3 बनाते। समझ आया कि नहीं आया सारिਆਂ ਨੂੰ कि टर्मिनल का मतलब की होंदा है? एक सेंट्रलाइज सर्वर होंदा है जिहड़ा आदान प्रदान करता है सूचनावां दा। दसो समझ आया कि नहीं आया?
जिवें आपां कह दिंदे आ एयरलाइन का जिहड़ा रिजर्वेशन हुंदा है, एयरपोर्ट का रिजर्वेशन हुंदा है, वो अड टर्मीनल ते हुंदा है ना। जां आपां गल करिए इन्हां दी जिहड़ी समय सारणी हुंदी है भी इन्ने टाइम ते इन्ने वजे चलेगी आह वाली फ्लाइट, इन्ने टाइम ते इन्ने वजे चलेगी आह वाली फ्लाइट इन्ने वड्डे टर्मीनल तो, टर्मीनल सैकेंड तो, टर्मीनल थर्ड तो। आ गई गल समझ च? और एक गल होर कर लईए, इहदे होर दिमाग ला लैंदे आ, जदों आपां एयरपोर्ट दीयां टिकटां लैंदे आ, एयरलाइन दीयां, जिवें आपां ले लई एयर इंडिया की टिकट लई, एयर इंडिया टिकट लई आपां, हुण तुसीं देखिआ होएगा, तुसीं एयर इंडिया की टिकट लैण वास्ते एयरपोर्ट नहीं जांदे, तुसीं एजेंट कोले जांदे हो, तुसीं एजेंट नूं कहंदे आ भरावा मैं आस्ट्रेलिया जाना वा, है ना। जिन्ना सौखा मैं कह रहा वां आस्ट्रेलिया जाना, इन्ना सौखा है नहीं वैसे, कह जी मैं आस्ट्रेलिया जाना वा, तो वह कहेगा भी हाँ जी टिकट तुहाडी बुक करा देंगे जी, आपां बना देंगे। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ टर्मीनल सर्वर नैटवर्क हैगा वा, ਉਹਦਾ डायरैक्ट सर्वर ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया है, एयरपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ। वो जैवें ही इत्थों टिकट बनाएगा ऑटोमैटिकली टिकट एयरपोर्ट की बन जाएगी, और कल नूं आपां जावांगे डायरैक्ट एयरपोर्ट दे विच अपने कोले टिकट पई होएगी। आई गल समझ? इनू कहा जाता है टर्मीनल सर्वर नैटवर्क। पेपर दे विच पूछ सकदा है, की पूछ सकदा है कि ऐसा नेटवर्क जो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में यूज होता है, तुसीं याद रखियो किहड़ा हुंदा है, टर्मीनल सर्वर नैटवर्क हुंदा है। किहड़ा हुंदा है? टर्मीनल सर्वर नैटवर्क। नैक्सट वन इज क्लाइंट सर्वर। की हुंदा है? क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर की गल करते हैं, आपां किसी नूं क्लाइंट रखते हैं, आपदे थल्ले आपां किसी नूं क्लाइंट रखते हैं, तो फिर वो अपने वास्ते सारा कुछ लैके आउंदा है, तो बस उही चीज़ है। इहदे विच की हुंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ध्यान नाल, देखो ध्यान नाल, आ चीज़ देखो, आ वाली देखो वायर देख रही तुहानूं, आ वाली वायर, ये वायर देखो इस वाईफाई दे विचों निकल के और आ देखो मेरे पीसी दे विच लग गई। एक तार दे नाल मेरा जिहड़ा नैटवर्क है वो आ रहा ना मेरे लैपटॉप दे विच विदाउट एनी कोई रीजन, सिर्फ एक तार दे नाल आ रहा है। यस या नो? समझ आई गल सारिਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ कह ਦਿੰਦੇ क्लाइंट, यानी कि मैं जी वायर रखी है मेरे वास्ते क्लाइंट है, ये बिना मैं इंटरनेट नहीं चला सकता, जो मैनू स्पीड चाहिए है तो मैं की रख लिया, क्लाइंट रख लिया। ठीक है जी। तो इसमें प्रत्येक नोड का व्यवहार जोड़ा होंदा है वो निश्चित होंदा है, प्रत्येक नोड का जोड़ा व्यवहार होंदा है वो की होंदा है, निश्चित होंदा है। जेकर आप गल करिए एक नोड सर्वर नोड होती है, ये आह वाली जी तार ला रखी है, मैं इनू की कहता, एक सर्वर नोड कह दिता। ठीक है जी। जे आप गल कर लीए क्लाइंट किहड़े किहड़े होंदे ने, जिवें गल कर लेने क्लाइंट होंदे ने मैक OSS सर्वर, ठीक है, विंडोज, फिर उस तो बाद सोलारिस, लाइनैक्स, ये सारे के सारे की ने सर्वर ने जिहड़े क्लाइंट सर्वर दे विच आ जांदे आ। लास्ट एंड फाइनल अज दा पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब की होंदा है, ये पीयर टू पीयर का मतलब की होंदा है, समान अधिकार। मैं दस्सिया सी ना समान अधिकार, जे एक दा दो थां ते विआह होया होया है और दोनों नूं वो समान, कहने का मतलब यह है भी समान रिस्पैक्ट देगी, तो कहने का मतलब हो गया भी समान अधिकार। ठीक है जी, समान अधिकार। इन्हां विच प्रत्येक नोड जिहड़ा होंदा है क्लाइंट तथा सर्वर दोनों के रूप विच कार्य करता है। जिवें आपां गल करिए, देखो मैं इत्थे कंप्यूटर रखिया, ठीक है जी, इत्थे भी एक कंप्यूटर रख दिता, 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 इत्थे भी एक रख दिता, इत्थे भी एक रख दिता, तो इत्थे भी रख दिता। समान अधिकार का मतलब की है? समान अधिकार का मतलब ध्यान ना देखो, मैं जी डायग्राम बना रहा वहाँ, ध्यान ना,
देखी चलो सारे जने। ठीक है जी, और कड़ी रह गई, आ देखो आ चीज हो गई। ठीक है जी, यानी मेरे कहने का मतलब ये है पीयर टू पीयर का मतलब की हो गया, पीयर टू पीयर का मतलब हो गया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਥਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਪਿਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰत्येक ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਰਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰत्येक ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਅਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰत्येक ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਅਰ, ਵੀ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ MS ਆਫਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਬਈ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੇਜਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। 1000 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ, 1000 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। 100% ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1000 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਏਮ ਰਹੇਗਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।